भाई करो नीचे आता है यार स्लाइड्स होगा। Anand ji, are your technical team is ready? Anand ji, should we start? Yes sir, yes sir. Okay. So your team is ready from that end. So okay. Very warm evening, good evening, respected Joint Director sir, faculty members, esteemed library colleagues, and all our dear students. My name is Dr. Amit Tiwari, and I am the convener of Library Committee of School of Open Learning. It is my privilege to welcome you all to the online orientation program for our institute's libraries. This session is designed to introduce you, especially our new students who have recently joined, to the extensive resources and supportive services available across our entire library network, which will be your key partner, of course, in your entire academic journey. So to formally commence today's proceedings, I request, and it is my distinct pleasure to invite our revered Joint Director, sir, who is with us today, Professor Projesh Roy, sir, to kindly address the gathering and share his invaluable insights. Sir, the virtual stage is yours. Thank you. Very good afternoon, uh, Dr. Amit Tiwari, Dr. Kadir Hasan, Mr. R.K. Tiwari, Mr. Prakash Dholakandi, Mr. Devendra Prakash, and Madam Vijay Lakshmi. And dear students, it's a wonderful event designed by the library people for the library orientation for the student of this session. This kind of initiative will definitely enlighten our student what are the different activities we are normally doing in the library and what are the benefit they can get from the library. Because at the end of the day, books is important. And when books is important, then you have to be into the library. So that's why this concept is. And this is possible because we have a dynamic, honorable director of Campus of Open Learning, Professor Payal Mago. She has always insist everybody should have to do student-centric work. That's why we are here today. We have a wonderful principal, Professor Ajay Jaiswal, who has always a kind hand for any kind of activities we normally do. And at the
but at the same time, you know that we have a Department of Library Science. We got two young, dynamic faculty member in library science. So we always take inputs from there time to time. So when you think, because SOL started in the year 1962, so from there, it's a long history and educated many students. And it is our pleasure to have you in our campus. Basically, we have a 5 library, and the North Campus Library is the main library, and then we have a West Delhi Library and South Delhi Library, and OLDC, we have a separate wing, and they are also doing extremely well in library, because it's the most advanced library they have created. In our preparation, we are going to set up a most advanced and valuable library in East Delhi campus. You know that we have inaugurated the East Delhi campus. It's a huge building. But the North Campus Library is a 7-floor library. It has a book bank. It's a normal books. It's a wonderful library. Now, interesting, I will tell you, we have around 6 lakhs of books in different subjects taught in our School of Open Learning. So these books are very valuable, and that kept in a nice way, and you have a wonderful reading area where you can read, we can stay there. The best part of the School of Open Learning Library that we are taking most initiative, and there are many inputs, there are many ideas, and we're just opening one idea to another idea, day-to-day basis. And you will see that there is a library, but at the same time, what we are thinking that we're going to give you the accessibility of the e-resources, e-book. And our Honorable Vice Chancellor, sir, he insists and directly told me that every student of Campus of Open Learning must have the accessibility of the e-resources, which subscribed by University of Delhi. So we are, for the first year student, postgraduate students, what we are thinking that we're going to create their emails, and with emails, you can access the e-resources, which is huge number of e-resources, e-book, e-journals, videos, lecture videos. These are the huge resources you can access with that. You can access from your home, and you can access through your mobile phone. And what other initiative we are taking in School of Open Learning Library, that you can search the books from your mobile phone. So you will have one logo in your mobile phone. You can search the books, and wherever you wanted to access that book, you can access, and you can get that particular book from any of the campus library, any of the library of School of Open Learning. And we have a wonderful idea we received from Dr. N. Kadirasan, our faculty member, that we need to have suppose one student is taking books from North Campus. One day he came to the North Campus, even he borrowed a book from North Campus Library. Suppose he's staying in South Delhi. So if he or she has don't have much time, they can return the book in South Campus Library. So that kind of idea in our mind, and we are working on that, and definitely we'll do that within a few months of time. So these are the idea, these are the new things, and we have a wonderful library staff, and they're doing extremely well. They're extremely well. So my job is to introduce, and I will tell one important thing, that that library is important, and that library is for you itself, because you paid for that. In your admission fees, there is a library fee. So this library is for you. And because of you, there is a library. So you have a full authority and we have a full support to you, that whenever you think you can come to the library, have a seat, read, and enlighten yourself. That is the main reason for that orientation. What we have, that is yours. Because of you, we have acquired that kind of resources.
And today, our library staff will present their library one by one, more specifically, and we will get into the what kind of resources are available there, who is the person who can directly connect with them. Those are the important aspects. So I welcome you in this session, and I think this session will definitely going to help you for your further interaction with the SOL campus. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, sir, for your gracious and inspiring words and for officially inaugurating this orientation. Your support for library system is deeply valued. Now we will move to the core part of our orientation. Our institute is supported by a network of libraries, including SOL North Campus Library, SOL South Campus Library, SOL East Campus Library, West Campus Library, and OLDC Center Library. So we will begin these presentations with an overview of our central and largest facility, the SOL North Campus Library, which serves as the main library of our institute. So to speak on this, I now call upon Mr. R.K. Tiwari, the in charge of the SOL North Campus Library, to present the resources and services in North Campus Library. Mr. Tiwari, please, you can start the session. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस लाइब्रेरी का एक पार्ट हूँ और हमारी ऑनरेबल डायरेक्टर मैडम है जिनके सानिध्य से हम काम कर रहे हैं, और हमारे प्रिंसिपल सर हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, और जो एक्सपर्टाइज की सहयोग है सारा का सारा हर चीज़ हमें जॉइंट डायरेक्टर सर से प्राप्त हो रहा है। हम उनके अंडर में काम करने का हमें सौभाग्य मिला है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम अपनी लाइब्रेरी को बहुत अच्छी तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी सी मैं एक वो दे देना चाहता हूँ आउटलाइन कि हमारी लाइब्रेरी नॉर्थ की 7th फ्लोर में डिवाइड हो गई है, क्योंकि हमारे पास बच्चों की संख्या बहुत सारा है, हर सेक्शन से हर कोर्सेज के बच्चे आते रहते हैं उसमें, तो उनकी सुविधा के लिए इस लाइब्रेरी को हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सर पहले हम शुरू करते हैं। सो लाइब्रेरी की जो वर्किंग आवर्स है, तो हम बच्चों की सुविधा के लिए 9 AM to 5 PM तक बच्चों को हम सर्विस देते हैं। इस बिटवीन इशू रिटर्न की सारी फैसिलिटीज हमारे पास होती हैं, जिसमें कि रीडिंग रूम है हमारे पास, वो भी 9 to 5 पर ओपन रहता है। अच्छा, हम एक बात हमें बताना चाहते हैं बच्चों को कि हमारी संडे को भी लाइब्रेरी ओपन होती है और ड्यूरिंग लीव पीरियड भी होती है, जब हमारी पीसीपी की क्लासेस शुरू होती हैं काउंसलिंग सेशन में। एक और भी, अगर कोई बच्चे डिले करते हैं, लेट लाते हैं, तो वैसे हमारा ये पर्पज नहीं है कि हम उनसे पैसे लें और कलेक्शन लें, बट क्योंकि अगर हम उनसे कोई कुछ नहीं रखेंगे तो हो सकता है वापस ना करे किताबें और दूसरे बच्चों को उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत थोड़े से हैं। इसलिए हमने एक माइनर सा उनके लिए फाइन रखा हुआ है, और वो भी वो चार्ज करते हैं इनसे हम। हमारी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की लाइब्रेरी, क्योंकि जैसे कि एक विजन है हमारे मैडम का और डायरेक्टर का और इस ऑफिस का कि जहाँ बच्चा हो उसको नियरेस्ट उसको सर्विसेज दी जाएं, इस पर्पज से हमारी लाइब्रेरी 4 सेंटर्स में डिवाइड हुई है। एक है साउथ रीजनल सेंटर, दूसरा है वेस्ट रीजनल सेंटर, तीसरा है ईस्ट रीजनल सेंटर, और OLDC लाइब्रेरी है। इस तरीके से हमारी 4 सेंटर्स में डिवाइड हुई है, और क्योंकि हमारी मेन लाइब्रेरी है 7 फ्लोर्स की है, इसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। स्टूडेंट्स यूनिट है जिनकी सुविधाएं सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलती हैं, स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा स्टाफ है और फैकल्टी हैं, तो उनके नीड को ध्यान में रखते हुए एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जिसको हम टीचर यूनिट के नाम से देते हैं। 3rd यूनिट है हमारा बुक बैंक सेक्शन, जिसमें कि मोस्टली गर्ल्स स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट्स, वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, और इसमें हम उन बच्चों को बुक्स जो है इंटायर सेमेस्टर के लिए देते हैं। उसके बाद जब उनका पेपर्स हो जाता है सेमेस्टर का, तो दूसरी उन किताबों को वापस कर देते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ से दूसरी किताबें उनको इशू कर देते हैं। इनमें जो हम सर्विसेज देते हैं,
हमारे पास जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। हमारे पास प्रिंटेड बुक्स हैं लगभग, बहुत हमारी ह्यूज लाइब्रेरी है, जबकि हम 1962 से है और इसका एक बजट भी बहुत ठीक बजट भी है। तो उस हिसाब से हमारे पास लगभग प्रिंटेड बुक्स का जो कलेक्शन है, जो सर्कुलेशन के लिए है, इनका नंबर है 6,50,000 अप्रोक्सीमेटली है। हमारे पास प्रिंटेड जर्नल्स और नेशनल इंटरनेशनल आते हैं, जिनके नंबर से 31 के लगभग हम मंगाते हैं, जो यहाँ कंसल्टेशन के लिए होते हैं, और अगर किसी को जरूरत होती है तो 1 या 2 दिन के लिए वो घर में इशू कराने के लिए भी ले जा सकते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं वो यही कंसल्टेशन के लिए है। मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स हमारे पास आते हैं जिनमें कि 24 उनकी संख्या है। रिमोट एक्सेस में भी हमारे पास वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए लगभग मोर देन 1,35,000 सब्सक्राइब जर्नल्स अवेलेबल हैं। इन कैंपस जर्नल्स जो होते हैं वो हमारे DUEL लाइब्रेरी के द्वारा मिलते हैं और उनका अप्रोक्सीमेटली 42,000 है। इन कैंपस ई बुक्स हैं 80,443 अप्रोक्सीमेट, बट इससे काफ़ी ज़्यादा है। और हमने बच्चों की सुविधा के लिए 10 पीसीज रखे हुए रीडिंग रूम में, जिससे वो अपने एक्सेस कर सकते हैं। जिनके बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं होते हैं, नेट की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो इसको हम इंक्रीज करने का प्लान है, लेकिन अभी फिलहाल हम 10 पीसी से उनको सर्विसेज दे पा रहे हैं। हमारे लाइब्रेरी की जो फ्लोर प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी अपनी लाइब्रेरी का आउट बताना चाहेंगे। तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ज्वाइंट डायरेक्टर सर्च का ऑफिस है, लाइब्रेरियंस का रूम है, लाइब्रेरी ऑफिस है जिसमें लाइब्रेरी के काम होते हैं। इसी फ्लोर पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो न्यू बच्चे आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है उनका रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। और उसके बाद, क्योंकि नो ड्यूज एक बहुत ज़रूरी काम है, बिना नो ड्यूज के किसी को कोई डिग्री या सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए उनको एक ड्यूज वेरिफिकेशन का भी सर्कुलेशन अंडर ग्राउंड फ्लोर पे ही है। उसके बाद यहाँ यूजी सर्कुलेशन है, जिसमें हम बीए और बीकॉम प्रोग्राम की बुक्स इशू करते हैं। इन बुक्स को हम 2 बुक्स मैक्सिमम एक बच्चे को एक टाइम पे इशू होती है, और उसके बाद वो उसको 30 डेज के बाद वापस करनी होती है। वो 30 डेज से पहले भी कर सकता है और उनको जब चाहे वो इशू कर सकता है और वापस कर सकता है। इसके अलावा हमने एक सुविधा के लिए ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम भी है, जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है सर्वर से, और हमारी अटेंडेंस उससे होती रहती है। बच्चों की सुविधा के लिए कि वो अपने आप देख सकें हमारे पास क्या-क्या मटेरियल्स हैं, क्या-क्या बुक्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं। तो एक ओपेक का हमने टर्मिनल रखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, जिससे वो बच्चे सर्च कर सकते हैं और उनको सुविधा के अनुसार अपनी सर्च के लिए वो जा सकते हैं। और एक हमारा जो है बिल्कुल शुरू में है रिसेप्शन है, जहाँ से बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों के लिए उनको गाइड करते हैं कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, और वहाँ पे हम अटेंडेंस भी उनकी रिकॉर्ड करवा लेते हैं। इसके बाद क्योंकि दूसरे सेक्शन पे हमारे पास ऑनर्स के बच्चे आते हैं, जो सबसे समझदार बच्चे होते हैं, मैक्सिमम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं लाइब्रेरीज़ का। इसके लिए हमारे स्टाफ भी बहुत उनको कोऑपरेट करता है, सहयोग करता है, वहाँ पे बैठा होता है, हर समय उनकी सेवा के लिए उपलब्ध है। यहाँ इस सर्कुलेशन काउंटर से हम बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, ये कोर्सेज यहाँ से उपलब्ध हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन के ऑनर्स कोर्सेज हैं। इसके इसके अलावा यहाँ से, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों को थोड़ी-सी अधिक ज़रूरत होती है, तो ये 3 बुक्स यहाँ से वो बोरो कर सकते हैं। वो भी 30 डेज़ में पढ़ने के बाद वापस कर जाएँ, दूसरी ले जाएँ, या विदिन 10 डेज़ या जब वो पढ़ लें तब वापस कर सकते हैं वो। इसी फ्लोर पे हमारे पास एक्विजिशन है, जिसमें कि रिकमेंडेड होती है, हमारे एक्विजिशन सेक्शन में आती है। एक्विजिशंस में फिर उसको प्रॉपर तरीके से चेक होता है, वेरीफाई होता है, उनके डाटा को जो हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग लाए हैं। फिर उनको एक्सेशन होता है मैनुअल रजिस्टर में, और उसके बाद उसमें फिर डाटा एंट्री होती है हमारे कोहा सॉफ्टवेयर में। उसके बाद फिर वो बारकोडिंग वगैरह होने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद फिर वो इशू काउंटर पे भेज देते हैं। सेम सेम फ्लोर पे ही हमारा एक मेंटेन सेक्शन है, जिसमें कि बिड आउट की होती है या अदर लाइब्रेरी की जो भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ से मेंटेन की जाती है। इसके बाद है सेकंड फ्लोर है हमारे रीडिंग रूम है, जिसमें हम लगभग 100 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, जहाँ वो बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये बहुत बड़ी वेल मेंटेन्ड रीडिंग रूम है, हवादार है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई पॉल्यूशन से रहित है। यहाँ इस सेक्शन पे हमने सारी जो बुक्स, जितनी टेक्स्ट बुक हैं या जनरल बुक्स हैं, वो बच्चों को कंसल्टेशन के लिए होती हैं। यहाँ से किसी भी बच्चे को बुक इश्यू नहीं होती है, हर टाइटल का एक-एक कॉपी यहाँ पे होती है। और ये इसी फ्लोर पे स्टूडेंट्स के लिए हमने न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स भी डिस्प्ले रखा हुआ है, जो बच्चे वहीं पे कंसल्ट करते हैं, पढ़ने के लिए होता है। इसी फ्लोर पे हमारे पास एक ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी है, जो बच्चों की सुविधा के लिए है सर।
उसके बाद हमारा थर्ड फ्लोर आता है पीजी सर्कुलेशन काउंटर। ये यहाँ बच्चे मोस्ट सिंसियर बच्चे होते हैं सर्कुलेशन काउंटर के। इसमें एमबीए के बच्चे आते हैं, एमलिप के आते हैं, पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑटोमेटेड सर्विसेज के बच्चों को हम सुविधा देते हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, इन कोर्सेज से रिलेटेड बच्चे आते हैं। और ये हमारा काउंटर बिल्कुल मेंटेन्ड है, यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल स्टाफ है, उनको हर तरीके से मदद करता है। और यहाँ बच्चों को 4 बुक्स एक टाइम में इशू होती हैं और अभी फिलहाल उनको 45 डेज तक वो रख सकते हैं। लेट होने पे उनको फाइन लेते हैं, थोड़ा सा माइनर सा लेते हैं, बहुत ज्यादा फाइन का व्यवस्था नहीं है सर। उसके बाद ये 4th फ्लोर है टीचर यूनिट सर। टीचर यूनिट इसको समझिए स्टाफ लाइब्रेरी है। यहाँ भी सारे काम होते हैं, हम एक्विजिशन भी यहाँ करते हैं और उसको प्रोसेसिंग भी करते हैं, एक्सेसनिंग भी होता है, डाटा एंट्री भी होता है, सेल्फ का मेंटेनेंस भी होता है। और ये इसमें बहुत बड़ा स्टैक एरिया है। यहाँ लगभग 1,23,000 बुक्स कलेक्शन है। इस सेक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिंगल टाइटल आते हैं, मल्टी वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, मल्टी टाइटल्स नहीं होते हैं। जितने कलेक्शन है उतने टाइटल होते हैं सर, इससे वैरायटी होती है सर क्वालिटी की। यहाँ जो हमारे फैकल्टी होते हैं नॉन टीचिंग होते हैं, क्योंकि उनके लिए बुक्स इशू होती हैं यहाँ से, तो उनके रिटायरमेंट पे या लाइब्रेरी छोड़ के जाने पे उनसे वेरीफाई किया जाता है। अगर वो किताबें सबमिट कर देते हैं ओरिजिनल तो ठीक है, अगर उनके पास कोई किताब मिस हो जाती है, उनको अवेलेबल नहीं होती है, तो हम उनसे उस बुक का कॉस्ट रिसीव करते हैं और उनको रिव्यू सर्टिफिकेट देते हैं। एक्विजिशन सेक्शन के पार्ट में एक्विजिशन वैसे बता दिया, इसमें भी वही है, कॉमन सी बातें, यहाँ भी बुक्स आती हैं, उनको चेक करते हैं, एक्सेशन रजिस्टर में एक्सेशन करते हैं, डाटा एंट्री होती है, बारकोड लगाते हैं उस पर, और स्टैंपिंग पेस्टिंग करने के बाद फिर उनको इशू के लिए सेल्फ पे जाता है। यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि वहीं अगर फैकल्टी या कोई स्टाफ आता है, वो बुक्स को वहाँ लेकर के कंसल्ट करना चाहता है तो वहीं कंसल्ट भी कर सकता है। इसके बाद हमारा 5th फ्लोर है। 5th फ्लोर में बहुत सारे हमारे जर्नल्स हैं, periodicals हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं और इंसाइक्लोपीडियाज हैं। ये बहुत रिच कलेक्शन है हमारा, बहुत पुराना, बहुत ओल्ड से लेकर के न्यू तक में भी सारे के सारे कलेक्शन है। ये सिर्फ कंसल्टेशन के लिए होता है, या अगर किसी को चाहिए तो एक रात के लिए ले जा करके वो इशू करवा सकता है और दोबारा कंसल्ट करके ला सकता है वो। यहीं से हम एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस भी करते हैं, जो हमारे वेब ओपेक पे रीड किया जा सकता है। इसमें MHRD की, DU की, SOL की न्यूज़ रखते हैं, इसके अलावा भी होता है इसका। उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के भी इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी जो यहाँ का रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए भी यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बाद हमारा 7th फ्लोर है जो बुक बैंक के लिए है। इसमें बुक बैंक है, यहाँ पे भी मेनली ये बच्चों के लिए है जो पुअर सेक्शन के होते हैं, वीकर सेक्शन के आते हैं, यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक सेक्शन है। यहाँ से हम बच्चों को 4 बुक्स इशू करते हैं जो सेमेस्टर तक के लिए होती हैं, और उसके बाद वापस करके दूसरी किताबें ले जा सकते हैं। ड्यूज वेरिफिकेशन भी यहाँ होता है, क्योंकि जो बुक्स ले जा रहा है उससे हम ड्यूज वेरीफाई करते हैं। ड्यूज अगर वो किताब नहीं वापस करता तो उससे उसकी बुक्स लेते हैं, और वो अगर लास्ट में बुक्स लास्ट अगर हो गई तो बुक लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हुई तो उसका माइनर सा उससे फाइन भी लेते हैं, और उसके बाद ही उसको हम नेडूस लेते हैं। यहीं पे हमारे एक्विजिशन सेक्शन है, जहाँ इस बुक बैंक से रिलेटेड हमारी वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, जिसके मेंबर्स बुक्स को रिकमेंड करते हैं और उनको इस सेक्शन में एक्वायर की जाती है, प्रोसेस एक्सेशन होती है, परचेज होती है, डाटा एंट्री होती है, उसके बाद बच्चों को इशू किया जाता है। इस सेक्शन से हमारे बच्चे जो है 4 बुक्स को बारो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा न्यू प्रपोज जो अब अपकमिंग कैंपस जो कैंपस रनिंग में है, बट वहाँ लाइब्रेरी, जैसे कि सर ने भी बताया था कि वहाँ पे बहुत बढ़िया सी लाइब्रेरी होने वाली है, तो वहाँ की भी थोड़ी सी अभी शुरुआत होनी है, तो जैसे गाइडेंस होगा उस तरीके से वहाँ भी हमें काम करना है सर। ये हमारा लाइब्रेरी की वेबसाइट है, आप इस पे होम में जा सकते हैं, लाइब्रेरी सर्विसेज देख सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी, और ये स्टाफ का, इसका भी मैं डेमो देता हूँ। उसके बाद हमारा एक DU ई लाइब्रेरी है, ई रिसोर्सेज जो है, इसमें हमारा सबसे पहले DU ई लाइब्रेरी का है। ये रिसोर्सेज मोस्टली पीजी और ऑनर्स स्टूडेंट के लिए होता है। इसके लिए एक ईमेल आईडी क्रिएट होती है और पासवर्ड क्रिएट होता है। उसके बाद हमारे उनको शेयर किया जाता है जो स्टूडेंट्स हैं,
वो स्टूडेंट यहाँ के अपना ईमेल आईडी और लॉगिन करके यहाँ से अपनी बुक्स इशू करा सकते हैं। इसमें जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, ई बुक्स हैं। मैं इसको एक बार डेमो देता हूँ। These are the resources which ई बुक्स हैं जिनको हम फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ई बुक्स न्यूज पेपर्स हैं जो फ्री, जो कहीं अवेलेबल नहीं, सारे पेपर यहाँ से हम रीड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ये फैसिलिटी है दी हुई लाइब्रेरी की, फ्री ऑफ कास्ट है। इसके अलावा दूसरी सर्विस है हमारी एनलिस्ट की है। ये भी, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जिनको बच्चे जिनको यूज कर सकते हैं। ये भी कस्टमाइज, ये भी रिक्वेस्ट पे है, जो रिक्वेस्ट करते हैं उनको हम इसका आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराते हैं। मोस्टली ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए होता है और उसके बाद वो अपने इन बुक्स का एक्सेस ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इनको इस्तेमाल कर सकते हैं सर। नेक्स्ट है डेलनेट। डेलनेट ये सभी के लिए नहीं है, रिक्वेस्ट पे ये सर्विस दी जाती है। इस पे हम ऑनलाइन बुक्स जिसको रिक्वेस्ट भेजते हैं उनकी बुक्स मंगवाते हैं और 15 डेज के बाद पढ़ के वो वापस करनी होती है। बट ये पब्लिकली नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। ये हम सिर्फ रिक्वेस्ट पे ही इस सुविधा को उपलब्ध कराते हैं। एक है हमारी, ये भी ऑनलाइन पोर्टल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का। ये लिखा हुआ लाइब्रेरी वन ऑल फॉर वन नेशन। ये सुविधा भी हमारे ई रिसोर्सेज में आती है। ये सुविधा भी एसओएल की लाइब्रेरी के द्वारा उपलब्ध स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराई जाती है। ये हमारा कोहा सॉफ्टवेयर का एक है, जो सारे सेंटर जितने भी हमारे रीजनल सेंटर्स हैं उस इस सेंट्रलाइज कोहा से जुड़े हुए हैं। ये हमारे कोहा का वेब पेज है। ये वेब ओपेक है। यहाँ Okay, thank you, Mr. Tiwari. Now I would request the library in charge from South Regional Center, Mr. Devendra. He will present about the South Regional Center's library. Thank you very much, sir. Thank you.
सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मैं देवेंद्र प्रकाश साउथ रीजनल सेंटर के पुस्तकालय का लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ। ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम धन्यवाद करते हैं माननीय आदरणीय डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो जी और प्रोफेसर अजय जी जो हमारे प्रिंसिपल हैं। वे हमारे इस ओरिएंटेशन के मार्ग निदेशक प्रोफेसर श्री ब्रजेश राय जी का, वे लाइब्रेरी कमेटी के कन्वीनर अमित तिवारी जी का, वे कादिर जी का, जिन्होंने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रोग्राम के चारों क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष अपने पुस्तकालय से जुड़ी हुई सभी जानकारी पीपीटी स्लाइड के द्वारा दे रहे हैं। देवेंद्र जी आप ऑडिबल नहीं हैं, प्लीज। आनंद जी प्लीज चेक व्हाट इज द इशू विद द वॉइस। सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रकाश रीजनल सेंटर साउथ के लाइब्रेरी का इंचार्ज हूँ। ओरिएंटेशन शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय आदरणीय श्री डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो जी का, श्री अजय जी का जो हमारे प्रिंसिपल हैं, और वे हमारे इस ओरिएंटेशन के मार्गदर्शक प्रोफेसर श्री ब्रजेश राय जी का, वे लाइब्रेरी कमेटी के कन्वीनर अमित तिवारी जी और टीचर एक्सपर्ट कादिर जी का, जिन्होंने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को करने के लिए हमें प्रेरित किया। इस प्रोग्राम के चारों क्षेत्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष सभी जानकारी के साथ अपने पीपीटी के द्वारा जानकारी दे रहे हैं। इस ओरिएंटेशन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पुस्तकों के प्रति जागरूक और पुस्तकालय में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देना है, ताकि छात्रों की दूरस्थ शिक्षा को सुगम बना सकें। पुस्तकालय की विस्तृत जानकारी स्लाइड के द्वारा दी जा रही है। अब मैं स्लाइड फर्स्ट शुरू करता हूं ताकि विद्यार्थी इसको इजीली देख सकें। ये एंट्रेंस गेट है साउथ रीजनल सेंटर मोतीबाग का। ये वेलकम कर रहे हैं हम रीजनल सेंटर लाइब्रेरी में विद्यार्थियों का, और इसको आने के लिए मैंने एक मैप दिखाया गया है जिसमें एम विश्वेश्वरा मोतीबाग से विद्यार्थी आके वॉकिंग डिस्टेंस है, और बाई व्हीकल्स अगर आते हैं तो 4 मिनट का डिस्टेंस है। उसके बाद स्टाफ इंट्रोडक्शन है। मैं सेल्फ देवेंद्र प्रकाश, असिस्ट करने वाले अनिल कुमार जी हैं, विनय अग्रवाल, अनुराधा, बबीता गोस्वामी और रजनी प्रभाकर, जो विद्यार्थियों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये मेरा कलेक्शन है, आवर कलेक्शन सर्कुलेशन यूनिट।
इसमें BA और BCom प्रोग्राम की सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें 2 बुक इशू करते हैं हम 30 डेज के लिए। बुक बैंक फैसिलिटीज है जो ऑल कोर्स के लिए अवेलेबल है, 4 बुक्स इशू टिल द सेमेस्टर एग्जाम। ह्यूज फैसिलिटीज सेंटर है जिसमें डिग्री सर्टिफिकेट्स के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड एक्सेट्रा। ये रेफरेंस सर्विसेज हैं जिसमें मैं रेफरेंस सर्विस के बारे में बताना चाहता हूँ। रेफरेंस सर्विसेज in a library connect user with the specific information or documents they needs, offering personalized assistance or professional librarians to help find answer and utilize library resource effectively। विद्यार्थी जब लाइब्रेरी में आता है, जब लाइब्रेरियन से कनेक्ट करता है, तभी हम उसकी सभी जो जानकारी है वो चाहता है दे पाते हैं, ताकि उसको एक करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड कर सकें या SDI सेलेक्टेड एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन दे सकें। अब हम विद्यार्थियों को जो अभी फिलहाल सुविधाएं दे रहे हैं उसमें इंडिया टुडे, आउटलुक और कंप्यूटर सक्सेस प्रतियोगिता दर्पण और 9 न्यूज़पेपर्स हैं, और हमारे पास डिक्शनरीज और काफी कुछ मटेरियल्स हैं जो विद्यार्थियों के रेफरेंस सर्विस में हम देते हैं। एक रीडिंग रूम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हमारे 50 विद्यार्थी एक साथ बैठ के रीडिंग कर सकते हैं, और हमारे पास डेली में बच्चे आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लासेस एक्सेस हो रही हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BCom ऑनर्स की। इसमें सभी बच्चे लाइब्रेरी में पुस्तकें लेने आते हैं, और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो उस एरिया के बच्चे हैं, क्षेत्रीय का मतलब है जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, रीजनल सेंटर्स का जो हमारे 4 सेंटर्स हैं, उनका तात्पर्य ये है कि जो घर के पास आपकी पुस्तकालय है उसमें जाकर आप अपनी सुविधाएं प्राप्त करें। ये कलेक्शन है हमारा 6000 बुक्स अबाव कलेक्शन है। इसमें सभी ह्यूमैनिटीज एंड बीकॉम्स की बुक्स दी जा रही हैं। अभी फिलहाल साउथ रीजनल सेंटर में 2 ही कोर्सों को बुक्स प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से हम एक पॉलिटिकल ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स की बुक्स भी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स ऑल मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम। विद्यार्थियों से निवेदन है, अगर उनकी कोई क्वेरीज हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू देवेंद्र जी। क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में होगा। हम सारे रीजनल सेंटर के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग आपके सवालों के जवाब भी देंगे, तो आपके जो भी प्रश्न हैं वो अपने पास रखें। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर प्रकाश टू प्रेजेंट अबाउट द OLDC लाइब्रेरी।
Good evening, sir. Uh, Respected our director ma'am, our principal sir, and our respected joint director sir, our wonderful teachers, and my dear colleagues, and along with the students who are joining us today. I will just be this is the orientation program. Is I'm giving introduction about the library OLDC. This is a part of School of Open Learning. One, the single library which having a good infrastructure with RFID enabled library. So just we start with the introduction part. एक मिनट working. सर OLDC लाइब्रेरी एक इंडिविजुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए इसका स्टैब्लिश हुआ है, जिसमें अन्य जो हमारी 4 लाइब्रेरी हैं उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं थोड़ी, क्योंकि यूजर भी थोड़ा अलग है। तो बेसिकली हमारा OLDC फोकस्ड रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। तो इसमें लाइब्रेरी में दीक्षांत अवस्थी सर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, जो लाइब्रेरी जिनके अंडर वहाँ पर है, और मेरे इसमें लाइब्रेरी में स्टाफ है हमारा, जिसमें मैं खुद हूँ, प्रमला जी हैं और सतीश गोस्वामी जी हैं। अबाउट द OLDC लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी को हम लोग स्वामी विवेकानंद नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। इसका विजन तो पाल मैम ने दिया था, डायरेक्टर मैम ने, और 2022 में इसके बाद इसको 22 जनवरी 2025 को प्रोफेसर हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोफेसर पायल मांगू। उसके बाद इसमें हम लोग बहुत सारी सुविधाएं, जो कि RFID इनेबल्ड इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी है, जिसके अंदर हमने रीडिंग रूम के रूप में एक फैसिलिटीज है, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ इस रूम में 50 तक स्टूडेंट्स आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरनेट और वाईफाई हाई स्पीड एक्सेस इंटरनेट है। कंप्यूटर लैब्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है OLDC में। टेक्स्ट बुक सेक्शन भी हमारे पास है, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल हैं। रेफरेंस सेक्शन है, रेफरेंस सेक्शन में हमारे पास डिक्शनरी, थिसॉरस, डायरेक्टरीज, ईयर बुक्स रेफरेंस सेक्शन है, जो कि रेफरेंस के लिए होती हैं, हम लोग इशू नहीं करते उनको जनरली। और पीरियडिकल सेक्शन में हमारे पास अच्छा खासा मैगजीन्स का कलेक्शन है, 30 से ज़्यादा मैगजीन और जर्नल्स हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, और लगभग 7 न्यूज़पेपर भी हमारे पास डेली नेशनल लेवल पर आते हैं। इसके बाद सर्विस, जो हमारा मुख्य बिंदु है सर्विस देने का, वो लैंडिंग सर्विस होता है लाइब्रेरी का किसी का भी। तो हमारी भी लैंडिंग सर्विसेज हमारी प्राइमरी सर्विसेज है। इसमें वी आर दिस सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग विद द कियोस्क। दिस इज कॉल्ड सेल्फ चेक सिस्टम। Student have a smart card and they able to access with the help of kiosk, they get the borrowed the books, and the staff user are the staff, faculty, and the skill enhancement courses students। हेल्प डेस्क से, हेल्प डेस्क सर कोई भी स्टूडेंट या फैकल्टी या कोई भी अन्य गेस्ट भी वहाँ पर आते हैं, क्योंकि CI के भी कुछ स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर भी हम लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो हम लोग उनको जो भी उनकी क्वेरीज होती है उसके लिए स्पेशल हमने हेल्प डेस्क प्रोवाइड किया हुआ है, तो स्टूडेंट आकर के उस पर अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन, जो कि एक रिसोर्स शेयरिंग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे हम लोग खासतौर पे फैकल्टी हमारी या कोई हमारे गेस्ट टीचर जो स्किल एनहांसमेंट के लिए ट्रेनर रखे हुए हैं, वो लोग कई बार बुक्स मांगते हैं, और वो बुक हमारी लाइब्रेरी में, नॉर्थ लाइब्रेरी में भी नहीं होती है। तो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के साथ टाई अप करके उनको
करवा लेते हैं, और फिर साथ में हमने सभी लाइब्रेरी में डेलनेट की सुविधा है, उस सुविधा का भी हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं सर। एक विशेष जो कि और अन्य जो हमारे लाइब्रेरीज हैं उनमें ये सुविधा नहीं है, प्लेगरिज्म चेक भी हमारे ही ओएलडीसी लाइब्रेरी में ये होता है। इसमें हमारी फैकल्टी मेंबर जो भी हमारे आदेश होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर उनको सुविधा देते हैं। खासतौर पे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिप्रोग्राफी सर्विस, क्योंकि रेफरेंस सेक्शन का मटेरियल ज़्यादा है और स्किल कोर्सेज वाले को हम केवल रेफरेंस सर्विस ज़्यादा देते हैं, फैकल्टी स्टाफ को हम सर्कुलेशन देते हैं, तो ज़्यादातर हमारे बच्चे स्टूडेंट्स या जो फैकल्टी जो आते हैं वो हमारे को इसके लिए फोटोकॉपी और स्कैनर दोनों हमने वहाँ उपलब्ध किए, तो रिप्रोग्राफी सर्विस भी हम ओएलडीसी में देते हैं। इसके साथ ही हम सर कुछ डिजिटल हमारी कंटेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए खासतौर पे सर्च टेक्निक वगैरह या डेप्थ एडवांस सर्च टेक्निक स्टूडेंट्स या खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, लर्निंग स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को हमारे ओरिएंटेशन के माध्यम से हम लोग उनको इस तरह का प्रोग्राम रन करते हैं, उनको हेल्प भी करते हैं, जो हमारा हम लोग सभी स्टाफ एक साथ मिल करके इस काम को परफॉर्म करते हैं। प्लेगरिज्म चेक के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका। इसके साथ जो क्योंकि इंटीग्रेटेड है, RFID इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो इसमें कुछ टूल हैं जिनके बारे में उनका नाम बताना चाहूँगा। तो एक RFID टैग्स हैं जो हर बुक के ऊपर लगा है, एंटी थेफ्ट स्टिकर्स हैं, RFID स्टेशन है, कियोस्क एक टूल है जो कि हमें सेल्फ इशू रिटर्न के लिए हम लोग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। RFID रीडर है, एंटीना गेट है, स्मार्ट कार्ड प्रिंटर और हैंड होल्ड रीडर जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हमारा डेडिकेटली स्टूडेंट्स के लिए कलेक्शन की इंफॉर्मेशन देने के लिए कैटलॉग है जो कि वेब बेस्ड कैटलॉग है। तो OLDC के जो यूजर्स हैं दे कैन एक्सेस वेब कैटलॉग, web opac, this is the online public access catalog, remotely they can access from anywhere anytime, and the same this integrated management software library used कोहा, क्योंकि सेंट्रलाइज नॉर्थ कैंपस में कोहा है तो हम सभी लोग कोहा को ही इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरफेस है स्टाफ के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्कुलेशन कैटलॉगिंग के पर्पज से इसको स्टाफ ही यूज करता है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि लाइब्रेरी जो हमारे क्योंकि ओल्डीसी में स्किल एनहांसमेंट के लिए बहुत सारे स्किल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। वो इज अबाउट 26 कोर्सेज अभी करंट टाइम में चल रहे हैं और उसमें 8 लैंग्वेज कोर्सेज है। तो ये सारे स्टूडेंट जो है हमारे यूजर्स होते हैं और इनके यूजर्स होने के साथ साथ हम लोगों को एक इनिशिएटिव मैम के दीक्षांत सर, जी सर, इन सबकी हेल्प से इन्होंने हमें ऑफर दिया कि भाई आप इनकी सुविधा है, आप इनको अपने जो एक्सपीरियंस है क्यों ना आप सर्टिफिकेट कोर्स में अपना एक्सपीरियंस दीजिए और हम बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ साथ टीचिंग कार्ड भी हम लाइब्रेरी सर्टिफिकेट कोर्स के द्वारा हमारे जो पूरे स्टाफ है उनकी मदद से हम इसको भी हम रन कर रहे हैं। अभी एग्जिस्टिंग में हमारा सेकंड बैच है और 26 स्टूडेंट्स अभी एग्जिस्टिंग चल रहे हैं जो कि दिसंबर में खत्म होगा। इसके बाद सर हमारा फ्यूचर प्लान OLDC लाइब्रेरी का है, क्योंकि हमारा R&D विंग है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चाह रहे हैं कि एक LMS तैयार करें जो कि हमारे कोहा जो हम एग्जिस्ट कर रहा है उसी की तरह से वो काम करे। तो उस पर कुछ हम लोग अभी हमारा विचार है इस पे करने का, और साथ में बिब्लियोमेट्रिक्स और साइटेशन एनालिसिस सर्विसेज भी, ताकि हम लोग जो साइटेशन एनालिसिस की सर्विस के द्वारा जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं उनको एक मेजरमेंट कर सके, उनका इम्पैक्ट क्या है हमारे सोसाइटी में। इसके लिए दिस इज द टूल वी वांट टू जस्ट बी इम्प्लीमेंट इन द OLDC लाइब्रेरी। एंड द another things we have to plan in the future कि हमारा खुद का एक डिजिटल रिपोजिटरी होना चाहिए। जैसे क्योंकि हमारे ET लैब में कई थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस वगैरह इस तरह का कंटेंट है, तो हम उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम जिस तरह का कि हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इस तरह का डिजिटल रिपोजिटरी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर
बेस्ड होती है, तो वो हम चाह रहे हैं कि हम भी अपना एसएल की जो रिपोजिटरीज हैं, जो डिजिटल कंटेंट हैं, चाहे आर्काइव्स हैं, उन सबको जो है ना ई रिसोर्स डिजिटल रिपोजिटरी के तौर पे इसको यूजर्स के लिए रखें। इसके साथ सर ये हमारा अगर स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी होती है, कोई से ओल्ड डे से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, या तो वो हमें मेल कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर पीरियड में वो पूछ सकते हैं। और साथ में सर हमारा एड्रेस है, और साथ में मैपिंग के थ्रू हमने उसको कोशिश की है बच्चों को रीच करने के लिए ओएलडीसी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Prakash ji. Now I would invite Mrs. Vijay Lakshmi ma'am, who will discuss about the West Regional Centers Library. नमस्कार, मैडम डायरेक्टर, प्रिंसिपल सर एंड डॉक्टर ब्रजेश सर विद स्टूडेंट्स, मैं सभी का अपने सेंटर पर स्वागत करती हूँ। He is Professor U.S. Pandey, Deputy Director of West Regional Center. This is our center, situated at Keshapuram. The address is C2 Keshapuram, Lawrence Road, New Delhi. ये हमारा केशवपुरम मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड है। 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस से बच्चे वहां पहुंच सकते हैं। This is our team. Myself, Vijay Lakshmi, library in charge, Mrs. Gayatri Sareen, my assistant, Mr. Sanjeev Gupta. He is helping me in the all services of library. Our library established in 2022 under the campus of Open Learning, University of Delhi. It serves UG and PG students, teaching and non-teaching staff of the School of Open Learning. It equipped with modern infrastructure, digital access points, and a student-friendly environment. This is our library attached with reading room. The reading room facility in library, the capacity is 20 and more. The library is fully air-conditioned reading hall with adequate seating capacity and Wi-Fi enabled environment for academic research and online learning. There is another special facility in emergency services like first aid and sanitary napkins available for students. Because of sir, जो हमारा सेंटर है वो फीमेल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बल्क में आता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमें इमरजेंसी नेसेसिटीज को हेल्प करना पड़ता है, उसके लिए हमने अवेलेबिलिटी रखी हुई है। The library's green surroundings make it a perfect spot to relax, recharge, and return to study with a fresh mind. The library timings. These are 9 a.m. to
5:30 p.m. Monday to Friday. It open during personal contact program classes and scheduled holidays, and close to gazetted and national holidays. There are some rules. The student can permit only with valid SOLI card. All users must sign the entry register and maintain silence and discipline inside the library. Type of resources. It includes newspaper, magazines, and journal material, reading material that broaden students' awareness and understanding of the world. It comprehensive collection of prescribed textbooks supporting all undergraduate and postgraduate courses. Comprises dictionaries, grammar books, and language textbooks to strengthen linguistic and literary proficiency. There are some newspapers: The Times of India, Hindustan Times, The Hindu, Hindustan, Rashtriya Sahara, NBT. And the magazines are Yojana, Kurukshetra, Reader Digest, Competition Success, Pratyogta Darpan, Down to Earth, India Yearbook. There are collection of 6,000 plus books across disciplines. The daily newspapers are and magazines are for current awareness. Repository of previous year question papers for exam preparations. लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी में बारकोड बेस्ड सर्कुलेशन है, linked with the Delhi University Library System for e-resources. Delnet से connected है, Delnet membership for interlibrary loans and online public access catalog for digital search and book locations. Services में circulation and renewal of books है, assistant in locating study materials and online resources, and comfortable quiet environment promoting concentration and study. Special arrangements में library orientation and awareness program for new learners. इसमें हम जो क्लासेस में स्टूडेंट्स आते हैं उनको लाइब्रेरी के बारे में और आईटी में जो बेनिफिट्स ले सकते हैं कंप्यूटर से, उनके बारे में भी प्रमोट करते हैं. A dedicated space for teachers to read, discuss, and interact. Faculty members use this area during breaks between their scheduled PCP classes. Plans are underway to increase the number of computers in the library from 2 to 10, each equipped with headphones, to allow students to learn using audiovisual medium along with the traditional print resources. And the audiovisual upgrade will be the most distinct feature of the library, through which we aspire to revolutionize learning. Future plans: expansion of the collection to 20,000 plus volumes, enhanced access to digital resources and e-journals, creation of subject-wise study zone, training sessions on e-resources and citation tools for students. Thank you. Thank you, Ms. Vijayalakshmi. Now the floor is open for the questions. If students have any doubt or any question regarding any kind of service or anything related to the library, they can ask on this forum. We will try to respond to you here itself. Someone has raised his hand. So, Mr. Anand, can you just, Diksha Kushwaha, she can be allowed to. Yes, on one her student mic and asking speak.
that SOL student can access the library. Yes, the library is open 7 days. So you can access the library on Sunday also, especially North Campus Library. आप नॉर्थ कैंपस लाइब्रेरी को फिलहाल संडे में भी एक्सेस कर सकते हैं, सैटरडे तो होता है, 7 days ओपन है। और साउथ कैंपस का भी हम 7 days ओपन करने वाले हैं, तो साउथ रीजनल सेंटर का भी आप एक्सेस कर पाओगे। Amit, it is your question. Is there any WhatsApp group for So BLIS? officially SOL or Campus of Open Learning, we do not have any WhatsApp group. Unofficially, if students make, there we have no control. There, if they have, they can create their own. We have nothing to say in that. But officially, we do not have any WhatsApp group Somebody is for asking the any course. timing of the library, that it is, of course, it is 9 to 5. Can we issue the books for ourselves? Yes, the library Can I ask you a is, query, please? the library is for yourself. Hello? Sir, may Yes. I ask you a query, please? Yes, Yeah, please go ahead. I just wanted to know regarding the exam dates and the. May I know the exam dates? You are the first semester student in which class? Which course? Which course? Please wait. You are the So- student in which course? First semester. Course. Which course? Sorry? In which course? You are a MBA. student of MBA. Your exam will be definitely probably in the month of December, I think so. And also, I would like to clarify here that the exam dates, exact exam dates, will be decided by the university, and you should visit the university website regularly. So SOL exam dates and university exam dates, everything will be decided by the university only, and mostly they will be on the same date. The exams in the regular courses and the SOL courses, that will be on the same Okay, day. But sir. for the Okay. for the information, you should be visiting regularly to the DU Okay, as well noted. as SOL websites. Okay. Somebody is asking how they are going to access e-library. Are you from MBA, Anshika, or are you in a postgraduate course? If it is yes, then we'll send you the credential email ID, so you can access. Through email, you Sir, have can you to please apply. repeat it once again? You can access. We'll send you email. Okay, sir. Then you can access. We'll definitely send you. Okay, thank you. Thank So actually, I also have a question. Can I ask regarding Yes, library? please. Yeah. Do we have to use any kind of credential or something to access the books, and for issue to get like for an just mentioned we can have it for a month something. So how can we do that? Like, do we have to use a SOL ID so that we can issue it? Yes. So You go with your ID. They will give you the library card, and you will able to issue the books. Okay. And do they also have other authors, disciplines book? Like if I have a Yeah. subject, I'm a currently 5th semester student of BCom program. So I need books regarding especially income tax and management accounting. So is there any other ITIS book also available? Yes, there are books on that. But if you require some specific book, we have a form. You just fill it up. We'll definitely purchase for that particular book. Okay. And I have also seen on the website that there is an option of ebooks, but whenever I try to access it, I cannot open it. So I No. tried it a lot, but never. Yeah. No.
that cannot be done. Actually, you need to have a credential for that. You need to have an email. So we'll send you email. If you wanted to do that, visit any of the library in SOL campus, and you just ask that I required an email. I wanted to access the e-resources. So definitely they will give you an email, create an email for you, and you can access the e-resources. Okay. And all the libraries are open for Monday to Saturday, all days, and for the north and south, it's for 7 days, right? 7 days, yes. Okay. Thank you. I think almost we have answered all the basic questions. Yes. So we can ask Kadirasan sir because we have another meeting. So thank you very much, students, for joining. Now I would like to request Dr. N. Kadirasan to propose a formal vote of thanks. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. I feel that the presentations and explanations by the library staff were excellent, and they have provided the detailed insights on every aspects of the library services. On behalf of the School of Open Learning, University of Delhi, I extend my sincere thanks to all who made today's library orientation program a success. Our heartfelt gratitude to Director Ma'am, Principal Sir, Joint Directors for their constant support and encouragement. A special thanks to our library in charges and library professionals from North, South, West, and OLDC for their insightful presentations on the use of library, digital resources, OPAC, and online databases, which have truly guided our students on how to make the best academic use of the library. I also thank my colleague and friend Dr. Amit Tiwari, Assistant Professor, School of Open Learning. I would also thank Mr. Anand and Mr. Rahul from technical team for managing the online session and live streaming smoothly. Most importantly, a big thank you to all our undergraduate and postgraduate students for your enthusiastic participation. Let us continue to explore, learn, and grow through our library resources. Thank you all and have a wonderful evening ahead. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. Wonderful. Thank you, sir.